Jai Hind, my dear students, welcome back to your classes. So it's our second video and we are studying exponent chapter. Okay, so we already studied about many things like absolute value, opposites, and about positive and negative signs and many more. Okay, so we also started our exercise 5.1. Now let's continue our exercise with next question. We already done question number 4. Now we are on question number 5. So let's take the book and read question number 5. Okay, so what is the question number 5 here? Mark the following integers on a number line. हमें इन सारे integers को number line पे mark करना है. Okay, so let's start question number 5. So our question is mark the following integers on number line. Our first part is A, that is minus 11. Okay, so we all know how to draw a number line. You all know that. आप सबने नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखा है, ठीक है. और मैंने आपको इंटीजर्स में बताया था कि हमेशा राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो मैंने लेफ्ट साइड पे काउंटिंग करना स्टार्ट करा. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 and so on. Okay, I have to represent -11 on the number line. So I write the counting. It's your choice. आप -11 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैंने -11 तक लिखे हैं क्योंकि मेरी कॉपी में इतना ही स्पेस था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या करना है? मार्क करना है. इनको क्या करना है? हमें मार्क करना है. तो मैं क्या करूँगी? -11 को मार्क कर दूँगी. यू कैन सर्कल इट, मेक अ ओवल शेप, मेक अ एरो ऑन इट, वट एवर यू वॉन्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 8. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से. राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं. कहाँ तक लिखने हैं हमें? 8 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. हमें कहाँ तक लिखने हैं? 8. इधर की तरफ हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं. -1, -2, -3 एंड सो ऑन. हमें क्या रिप्रेजेंट करना था? 8 को रिप्रेजेंट करना था. एंड वेयर इज द 8? हेयर. सो वी विल रिप्रेजेंट 8 लाइक this. Now next part is -4. Again we will start it with 0. Okay, let's mark 0. Okay, on right hand side there are positive integers and on left hand side there are negative integers. -1, -2, -3, -4, -5 and so on. Okay, हमें क्या मार्क करना है? -4. So we will encircle that -4. Okay, so it is very simple to mark the integers on number line. Now our next part is D, that is 0. We have to mark 0. We all know 0 is the middle value. We all know 0 is the middle value. So it is 0 and we will mark it here. It's very easy to mark 0. Next part is E, that is -7. What is our E part? That is -7. You have to do that part in homework. Okay, now let's come to the next question, that is question number 6. What is our question number 6? Let's read that. Write all the integers which come between the following point pairs of numbers. इन pairs के बीच में कौन कौन से numbers आ रहे हैं, मुझे ये find out करना है. Okay, so let's start. How we can find out? Okay, so let's start with our question number 6. Write all the integers which come between the following pairs of numbers. इनके बीच में आने वाले हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें लिखना है. हमें किसके बीच में ढूंढना? -4 से 2 के बीच में. तो हम क्या करेंगे? -4 से 2 तक अपनी नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे. उसके लिए हम सबसे पहले मार्क करेंगे 0. ओके, राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, दैट इज़ 1 एंड 2. हमें 2 तक फाइंड आउट करने हैं. राइट हैंड साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे. कहाँ तक? 4 तक. -4 तक. -1, -2, -3, -4. ओके, आप चाहें तो इससे आगे भी लिख सकते हैं, लाइक 3 एंड -5. ओके, हमें किसके बीच के इंटीजर्स ढूंढने हैं? -4 से 2 के बीच के इंटीजर्स ढूंढने हैं हमें. तो हम क्या कौन कौन से -4 से 2 के बीच के? -3, -2, -1, 0 एंड 1. -4 से 2 के बीच में मेरे कौन कौन से इंटीजर्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे बात कर ली है. नंबर लाइन से मैंने इनको इजीली फाइंड आउट कर लिया है. मैंने इनको मार्क कर दिया. मैं क्या करूँगी? यहाँ पे अपना आंसर लिख दूँगी. कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो मेरे इसके बीच में आ रहे हैं? -3, -2, -1, 0 एंड 1.
It's very easy and simple to find them through the number line. That's why we use that number line to finding the numbers, because it's the starting of integers for you all. इसीलिए हम easy से easy methods लेके चलेंगे, whatever the easy methods are. So number line is the easiest method to find any numbers between any pair. Okay, so our next pair is 0 to -5. So let's mark 0 and let's start counting up to -5. Okay, -1, -2, -3, -4, -5, -6. ओके, दैट्स इट. अब हमें किसके बीच में ढूंढना है? -4 से सॉरी 0 से -5 के बीच में. 0 से -5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? -1, -2, -3 एंड -4. वेरी इजी टू फाइंड, इट्स सो सिंपल. सो कौन कौन से इंटीजर्स हैं? -1, -2, -3 एंड -4. ओके, नेक्स्ट इज 3. -3 से +3 के बीच में मुझे देखना है. सो लेट्स मार्क अगेन 0. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4. इन नेगेटिव -1, -2, -3, -4. ओके, अब हमें -3 से +3 के बीच में फाइंड आउट करना है. तो -3 से +3 के बीच में आप सबको दिख रहे हैं कितने इंटीजर्स आ रहे हैं मेरे पास? हैं 5 इंटीजर्स आ रहे हैं. -2, -1, 0, 1 एंड 2. लेट्स राइट दोज इंटीजर्स. कौन कौन से आ रहे हैं? -2, -1, 0, 1 एंड 2. दीज आर द 5 इंटीजर्स. ये 5 इंटीजर्स किसके बीच में आ रहे हैं? -3 से +3 के बीच में आ रहे हैं. आवर नेक्स्ट पार्ट इज 2 एंड -1. ओके, 2 से -1 के बीच में कितने आ रहे हैं? सो लेट्स स्टार्ट मार्किंग देम बिटवीन 0. बिटवीन बीच की वैल्यू मेरी कौन सी होगी? सबसे बीच में हम क्या रखते हैं? ऑलवेज 0. लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड, मीन्स पॉजिटिव साइड. 1, 2, 3. इतनी काउंटिंग मेरे लिए एनफ है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 चाहिए. -1, -2. इतनी काउंटिंग मेरे लिए एनफ है क्योंकि मुझे सिर्फ -1 चाहिए था. -1 से 2 के बीच में या 2 से -1 के बीच में. तो 2 से -1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है? 0 एंड 1. 0 एंड 1 ओनली. So it's very easy to find those pairs, find numbers between those pairs. Okay, you can use number line for that. Draw on number line, and easy. These are the between pair numbers are easily visible on the number line. Like next part, -7 and -1. It is your homework. You have to do that part in homework. Okay. Now let's come to the next question. Which question is next? Question number 7. Let's read that question first. Okay. ओके, रीड द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज साइंस. हमें इन साइंस के थ्रू बताना है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. दीज साइंस आर यूज्ड टू डिफाइन ग्रेटर एंड स्मॉलर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेटर एंड स्मॉलर वैल्यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज -7 एंड +7. हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ. नंबर लाइन पे हम जब भी राइट हैंड साइड चलेंगे हमारी वैल्यूज़ हमेशा इंक्रीज होती जाती है. मतलब अगर हम राइट हैंड साइड मूव ऑन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यूज़ हमेशा बढ़ती हैं, ऑलवेज इंक्रीज होती है. हमेशा 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा. यानी कि राइट हैंड साइड में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज़ क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी. और जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी. सिमिलरली अगर हम इधर आ जाए, जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते जाएंगे वैल्यूज़ कम होती जाएंगी. ओके, लिसन केयरफुली. जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ कम होती जाएंगी. कम होने का मतलब -4 छोटा है और -1 बड़ा है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं वैल्यूज़ छोटी हो जाती है. -4 छोटा है, -1 बड़ा है. ठीक है, इनके 4 या 1 होने से फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस साइन से फ़र्क पड़ता है कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी बड़ी है. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे आपको सिर्फ नंबर लाइन को अपने ध्यान में रखना है. नंबर लाइन पे देखना है कौन सी वैल्यू लेफ्ट में है और कौन सी वैल्यू राइट में है. जो वैल्यू राइट में होगी हमेशा बड़ी होगी और जो वैल्यू लेफ्ट में होगी वो हमेशा छोटी होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 और 7. अगर हम -7 और 7 के बीच में देखें तो राइट में मेरी कौन सी वैल्यू आएगी? 7. और लेफ्ट में कौन सी आएगी? -7. तो जो वैल्यू राइट में होगी वो हमेशा बड़ी होगी. दैट मीन्स ग्रेट दिस साइन. ओके, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन -7. Now 0 and 4. We all know 4 is greater than 0. -3 or 0. We all know that -3 is in left hand side and 0 is in right hand side. So which one is greater? 0 is greater. Okay. +6 and -16. +6 is in
right hand side, okay, and minus 16 is in left hand side. So which one is greater? Plus 6. 15 and minus 3. 15 is in right hand side and minus 3 is in left hand side. So which one is greater? 15. Okay, just be careful in these questions. हमेशा जो भी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पे होगी नंबर लाइन में वो हमेशा बड़ी होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो हमेशा छोटी होगी. आपको इन क्वेश्चन से करने से पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक इमेजिनरी नंबर लाइन को इमेजिन करना है और उसके थ्रू आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली बना सकते हैं और कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. So which one is our question number 8? Here, arrange the following integers in ascending order. इन integers को हमें किस ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, लाइक दिस. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू. अब हमें पता है बड़ी छोटी वैल्यूज फाइंड करना हमें आता है. जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है वो सबसे छोटी है और जो वैल्यू राइट हैंड साइड में है वो सबसे बड़ी है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग. Okay, so it's our next question, that is question number 8. Arrange the following integers in ascending order. First part is -5, 10, -4, 0 and 40. Okay, we have to find out the smallest value. Ascending order में क्या होता है, हमें सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है. सबसे छोटी वैल्यू हमें यहाँ से सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी. अब हमें हमेशा पता है नेगेटिव हमेशा छोटे होते हैं, पॉजिटिव हमेशा बड़े होते हैं. तो हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, -5 एंड -4. अब इन दोनों में से हमारा छोटा कौन सा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा होगा नंबर लाइन पे. अब हम अगर नंबर लाइन इमेजिन करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा आ रहा है मेरा, -5. सो सबसे छोटी वैल्यू -5, उससे बड़ी वैल्यू -4, उससे बड़ी वैल्यू 0. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स के बाद हमेशा क्या आता है, 0 आता है. उसके बाद 10 और उसके बाद 14. ओके, सो इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स में जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा सबसे छोटा वो, फिर उससे बड़ा, फिर 0 आ गया हमारा, और 10 और 14 हमारे पास दो ऑप्शंस बचे थे. हमें सबको पता है 10 जो होता है वो छोटा होता है, 14 जो होता है वो बड़ा होता है. सो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 थी और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -14 थी. ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना. नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. सबसे पहले मैं नेगेटिव वैल्यूज़ लूँगी. नेगेटिव वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर दो हैं, -12 एंड -13. अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी इनमें से दोनों में से कौन सी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा छोटी. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही होगी. लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू आ रही है मेरी, -13 आ रही है. उसके बाद -12, हमें सबको पता है नेगेटिव इंटीजर्स के बाद क्या आएगा मेरा, 0 आएगा. अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 10 और 12. सो 10 हमारा छोटा है और 12 हमारा बड़ा है. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड. सबसे छोटी वैल्यू -30 और सबसे बड़ी वैल्यू 12. ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को भी अरेंज करेंगे. ओके, 6, 8, 7, 9, -10. 6, -8, 7, -9 एंड -10. सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे. नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा उल्टा चलता है, जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है. असल में जो हमें सबसे बड़ा दिख रहा होता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है. क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है. तो सबसे छोटा हमारा क्या है यहाँ पे, -10. नेक्स्ट वन इज -9. नेक्स्ट वन इज -8. देन 6 एंड देन 7. ओके, सो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वन इज -10 एंड लार्जेस्ट वन इज 7. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पार्ट. 5, -5, 4, 3 एंड -11. सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे. नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं मेरे यहाँ पे, -5 एंड -11. हमें सबको पता है कौन सा छोटा होगा, -11. क्यों? क्योंकि ये क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है. सो -11. आफ्टर दैट -5. आफ्टर दैट 3, 4, 5. हमें सबको पता है ये किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, किस ऑर्डर में इनकी वैल्यूज़ होती हैं, 3, 4, 5. It's done. Now our next part, that is E part, is in homework. You have to do this part in homework. Our next question is ascending the following integers in descending order. हमें इसमें किसको अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. हमें वैल्यूज इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है, सिर्फ इनका ऑर्डर हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना. वी जस्ट हैव टू रिवर्स द ऑर्डर. ओके, in starting we will write the number with the greatest value and in ending we will write the
number with smallest value. So we have to find the number with greatest value. तो हमेशा हम क्या लेंगे, फर्स्टली वी विल प्रोसीड विद द पॉजिटिव इंटीजर्स. सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स में ढूंढेंगे विच वन हैव द ग्रेटेस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. हेयर वी हैव 3 पॉजिटिव इंटीजर्स 100, 30 एंड 5. वी ऑल नो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 100 की, देन 30, देन 5. Sorry, it's 5. Okay, it's not minus, it's 5. Now 2 values are remained here, minus 150 and minus 200. It is 150 and it is 200. 2 values are remain. Now we all know which comes on the left side is of minimum value, is of smallest value. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. तो हमें पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए. ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दोनों में से किसकी होगी, माइनस 150 की होगी. इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड बिकॉज वी ऑल आर इमेजिनिंग नंबर लाइन इन आर माइंड. एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट जो हमारा बच गया, द रिमेनिंग वन. ओके, नेक्स्ट पार्ट, -7, -6, -5, 0 एंड 10. वी ऑल नो वी हैव टू अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं अरेंज. मीन्स फर्स्टली वी विल write the number with greatest value, then smaller, then smaller, then smaller. We will proceed like this. So we have to find a number which have the greatest value among them all. So these are the negative integers. So these are not the numbers with the greatest value. This one is the with positive number. This one is the positive number. Means it has the greatest value. Means we will start this with 10. After that, after the positive number, we all know 0 came. Now we will proceed with the negative integers. Okay, now it is very simple. We all know in negative integers सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड साइड में होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी. अब इन तीनों में हमारे पास राइट हैंड साइड में कौन सा होगा, हम सब नंबर लाइन को इमेजिन करके ये चीज़ पता लगा सकते हैं. राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा होगा, -5, उसके बाद -6, उसके बाद -7. ओके, मीन्स सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, -7 की, उससे बड़ी 6 की, उससे बड़ी 5 की, उससे बड़ी 0 की, उससे बड़ी 10 की. इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड एंड वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव 0, -7, 14, -18 एंड -20. नाउ वी हैव टू फाइंड which one have greatest value. We all know negative integers can't possess the greatest value, so it is positive one, means 14. After 14, 0. Now we have 3 negative integers, -7, -18 and -20. We have to find out which one have the greatest value. जिसकी greatest value होगी सबसे पहले वो आएगा. क्यों, क्योंकि हमारा descending order चल रहा है. You have to keep in mind that which order you are following, whether it is ascending order or whether it is descending order. Okay, it is descending order, that's why we will take a negative integer with greatest value. So we all know which among the 3 has the greatest value. It's -7, after that -18 and after that -20. Okay, it's very simple to find. You can imagine the number line or you can just take their values opposite to their न्यूमेरिकल वैल्यू. अगर आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा इनकी वैल्यूज़ को ऑपोजिट लेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट. नाउ अदर 2 पार्ट्स आर इन होमवर्क. पार्ट डी एंड पार्ट ई आर इन होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज पार्ट्स इन होमवर्क by imagining the number line and just revise them very carefully again and again because it's a new chapter, it's a new concept, so you have to be very careful while studying this chapter. Just keep in mind everything. You have to be very keen observer while you are studying this chapter because this chapter is very important for your next classes and it's a new concept for you. Okay students, so Jai Hind to everyone. Let's meet in our next class.